first example is u is equals to 1 upon under root of x square plus y square plus z square. Here divisor term is not equals to 0. That means ये कभी infinity नहीं होगा. Then we have to show that this condition. इस टर्म में रिक्वायरमेंट क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x partially, then similarly derivative of u partially with respect to y twice and third z से. अब एक टर्म का भी प्रॉपरली निकालते हो तो रिमेनिंग जो टू टर्म्स है उसका आ जाता है. नाउ सी हियर फर्स्ट टर्म इज u इक्वल्स टू जो आपके पास में गिवन इक्वेशन है. सपोज ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1. u is equals to given term is equation 1. If we differentiate this term, differentiate equation 1 partially with respect to x. अगर x से differentiate कर रहे हैं तो we have to keep y and z as a constant because u is a function of x, y, z. और जिस वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसे वो वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट. सो फ्रॉम दिस टर्म हियर del u by del x इक्वल्स टू, इस टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट करो तो ये जस्ट लाइक एज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n का टर्म आएगा जिसका डेरिवेटिव होता है n x रेज टू पावर n माइनस 1. सो ये ब्रैकेट का पावर है हाफ. तो इस फॉर्मूले से ये होगा -1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल रेज टू पावर -1/2 -1, क्योंकि ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो पावर विल बी माइनस हाफ. सो ये फॉर्मूले से दिस वन. बट यहाँ पे सिंपल x थोड़ी ना, इट इज ए फंक्शन. सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x एंड बाकी रिमेनिंग टर्म्स आर कांस्टेंट. सो डेरिवेटिव बिकम 0. सो दिस इज अवर del u by del x. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज -1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर plus z square raised to the power -3/2 into twice x. Here 2 and this 2 is cancelled. So it is a minus x square plus y square plus z square raised to the power -3/2. Now we have to find second derivative because we require second derivative of u partially with respect to x. So again differentiate partially with respect to x. So we get del square u by del x square is equals to x से differentiate करें. Here x contained in this first term as well as in second. So apply product rule. So here first term का derivative होगा -1. Here bracket term as it is x square plus y square plus z square raised to the power -3/2 plus derivative of second term first as it is. So first term minus x as it is. Derivative of this term it is -3/2 x square plus y square plus z square raised to the power -3/2 -1. अगर -3/2 -1 करोगे तो it will be -5/2. Again derivative of bracket term so it is twice x. Now here again division के 2 के साथ में ये टर्म कैंसिल और ये x into x that is x square. तो just simplified form में लिखती हूँ इसको. It is minus x square plus y square plus z square raised to the power -3/2 minus this x and x is x square and here -3 और ये minus so it is +3 x square in bracket x square plus y square plus z square raised to the power -5/2. This is our del square u by del x square. Equation number 3. देखो similarly del u by del y is equals to similarly del u by del y. Now see here from given equation if we interchange x and y still our u is same. So here instead of this x if we interchange x and y then we get del u by del y is equals to -y in bracket x square plus y square plus z square raised to the power -3/2. second derivative के लिए again differentiate partially with respect to y. अगर y से डिफरेंशिएट कर रहे तो इट इज del square u by del y square is equals to डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म तो -y का डेरिवेटिव -1. सेकेंड टर्म एज इट इज तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज़्ड टू द पावर -3/2 एज इट इज प्लस फर्स्ट ये जो सेकेंड ब्रैकेट टर्म है वो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म एज इट इज. तो फर्स्ट टर्म मतलब -y एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म इज -3/2 in bracket x square plus y square plus z square
whole raised to the power minus 3 by 2 minus 1. So it will be minus 5 by 2. Again derivative of this bracket, so it is twice y. Here again 2 cancel. ये minus minus plus और y into y is y square. So it is minus x square plus y square plus z square raised to the power minus 3 by 2. It is plus 3 times y square in bracket x square plus y square plus z square raised to the power minus 5 by 2. This is our equation B. So here ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी सिमिलर आएगा और सेकेंड डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा हियर एक्स और वाई एक्स और जेड को इंटरचेंज करो फर्स्ट में या फिर यहाँ पे बोलो वाई और जेड इंटरचेंज. तो हियर इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी प्लस ऑफ इक्वेशन सी. तीनों का फर्स्ट टर्म सिमिलर है तो तीनों का फर्स्ट टर्म सिमिलर है तो 3 बार एडिशन हो रही है तो क्या होगा माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस 3 by 2. तीनों का अगर फर्स्ट टर्म देखोगे तो दिस वन माइनस ऑफ दिस टर्म माइनस ऑफ दिस टर्म दैट मीन्स वी गेट माइनस ऑफ 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस 3 by 2. सेकेंड टर्म देखो ये वाला टर्म यहाँ पे 3x स्क्वायर है यहाँ पे ब्रैकेट वाला टर्म तो सेम है बस यहाँ पे 3y स्क्वायर आ रहा है. तो सिमिलर टर्म अगर हम तीनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो तीनों के एडिशन में क्या होगा ये तीनों का सेम टर्म आउटसाइड आ जाएगा. दैट मीन्स 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस 5 by 2 आउटसाइड और जो बचेगा टर्म है ना बचने वाला टर्म रहेगा फर्स्ट टर्म में रहेगा एक्स स्क्वायर रिमेन सेकेंड में वाई स्क्वायर थर्ड में जेड स्क्वायर. बस हियर ये टर्म और ये टर्म दोनों के सिमिलर है दोनों के पावर का एडिशन माइनस 5 by 2 प्लस 1 कितना होता है माइनस 5 by 2 प्लस 1 माइनस 3 by 2. So here this term is 0 and therefore hence addition of this term is 0. Now question second is if u is equals to x square tan inverse of y by x minus y square tan inverse of x by y where x into y is not equals to 0 and prove that del square u by del x del y is equals to x square minus y square divided by x square plus y square. ये हमें प्रूव करना है एंड वी नो दैट अगर मेरे पास में del u by del y का टर्म है del z by del y का अगर टर्म है इस टर्म को अगर आप x से डिफरेंशिएट करते हो तो इस टर्म का डेरिवेटिव मतलब इस टाइप में दैट इज नथिंग बट del square z by del x del y ये होता है. सो हियर इन दिस टर्म अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट y से डिफरेंशिएट करो जो भी डेरिवेटिव आएगा देन उसको x से डिफरेंशिएट करो दैट मीन्स हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा u is equals to x square tan inverse of y by x minus y square tan inverse of x by y. This is our equation 1. Differentiate partially with respect to y. अगर y से डिफरेंशिएट करते हैं तो we get del u by del y is equals to here y सिर्फ tan इनवर्स में तो ये x स्क्वायर का टर्म कांस्टेंट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस जो भी टर्म है वो उसका स्क्वायर तो ये y by x ब्रैकेट स्क्वायर अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म बिकॉज ये सिंपली y नहीं है इट इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन दैट इज y by x. सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ y by x so here 1/x as it is constant निकलेगा we are differentiating y so 1/x as it is derivative of y is 1 minus here y से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं बट y आउटसाइड में भी है tan इनवर्स के अंदर है तो वी आर अप्लाई प्रोडक्ट रूल तो वी आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म तो माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2y सेकेंड टर्म tan इनवर्स ऑफ x by y as it is then minus y square first term as it is derivative of tan inverse is 1/1 plus ये जो भी टर्म है उसका स्क्वायर तो इट इज x by y ब्रैकेट स्क्वायर अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म तो x as it is रहेगा because we are differentiating with respect to y तो x as it is derivative of 1/y is minus 1 by y square. Now here इस टर्म को जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट हमें प्रॉपरली सॉल्व करके आएगा तो ये जो है 1 इस x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर 1 के डिवीजन में ये टर्म उसके डिवीजन में दिस टर्म तो ये क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट और इस x के साथ में ये x वैसे भी एक कैंसिल आउट हो रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे न्यूमरेटर में x है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में फिर से x आ जाएगा तो इट विल बी x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज अवर फर्स्ट टर्म माइनस
सेकेंड टर्म में कुछ सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता, तो इट इज 2y tan इनवर्स ऑफ x by y एज इट इज। थर्ड टर्म में अगेन y स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, एंड दिस y स्क्वायर डिवीजन का y स्क्वायर, ये जो है ये y स्क्वायर इस y स्क्वायर के साथ में कैंसिल, ये ऑलरेडी न्यूमरेटर में डिवीजन में ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, और ये जो डिवीजन का अगेन शिफ्ट होने वाला ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, दिस x इज एज इट इज, तो x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा x। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बेटर रहेगा, जैसे ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो बेस टर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का बेस टर्म अगर सिमिलर है तो न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन होगा, तो इट इज एक्स क्यूब, ये इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y tan इनवर्स ऑफ x बाय y। अगेन यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, जैसे ही x कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x अगर आउटसाइड निकलेगा तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2y tan इनवर्स ऑफ x by y। नेक्स्ट टर्म में क्या चाहिए, वी हैव टू डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, सो हियर डिफरेंशिएट partially with respect to x. Now here left hand side is del square u by del x del y is equals to derivative of x is 1, here minus 2y constant as it is, derivative of tan inverse is 1 upon 1 plus x by y bracket square, again derivative of this term, तो ये 1 upon y as it is because we are differentiating with respect to x, so 1 upon y as it is, derivative of x is 1। here क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से ये y और ये मल्टीप्लीकेशन का y कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 1 माइनस 2 एज इट इज न्यूमरेटर का, और ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। यहाँ से आगे जस्ट उस प्रूफ के हिसाब से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना इस टर्म को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ सी हियर ये वाई स्क्वायर का एक टर्म इसके साथ कैंसिल, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हिंस और क्वेश्चन में देखो, ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय जेड जेड ब्रैकेट स्क्वायर इनटू यू इक्वल्स टू दिस वन। ये टर्म इस टर्म का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू दिस वन, तो फर्स्ट वे वी हैव टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो गिवन फंक्शन जो है लॉग वाला टर्म, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये y and z कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव बिकम 0, एंड इन थर्ड टर्म माइनस 3yz कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x is 1। Now in question, if we interchange x and y, still we get same answer. So here replace x and y, interchange x and y, so then we get this second term. Instead of x just y लिखा है और y के जगह पे x। Similar way, if in question if we interchange x and z also, we get still function is same. That means यहाँ पे भी क्या करोगे, x और z को interchange कर दो, तो we get this third derivative term। तो ये तीनों डिफरेंशिएशन निकाल लिए, इन तीनों को ऐड करना है, तीनों को जैसे ही ऐड करोगे तो न्यूमरेटर का टर्म ऐड हो जाएगा, उन न्यूमरेटर के टर्म में 3 कॉमन निकल जाएगा, बचा हुआ जो भी टर्म है वो वाला डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट टर्म एज इट इज, क्योंकि डिवीजन तीनों का सेम है तो डिवीजन का टर्म एज इट इज। नाउ इस टर्म में आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, ये जो आउट डिवीजन का टर्म है ना, we can write it is in the form of x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz। इसको मल्टीप्लाई करके देखो और ओपन करोगे तो वी गेट ओरिजिनल टर्म। को वो मल्टीप्लिकेशन शो करती हूँ। नाउ सी हियर, इस टर्म को मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है, ये न्यूमरेटर का ब्रैकेट था और उसको x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई, दिस टर्म, फिर y से किया जेड से किया, तो फिर बचे हुआ टर्म देखो, ये जो टर्म है ना एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये एज इट इज आ गया। ये जो टर्म है एक्स वाई स्क्वायर आपको माइनस में यहाँ पे मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर, इस वन, ये प्लस में है तो ये माइनस में, एक्स जेड स्क्वायर का टर्म है यहाँ पे,
अगेन हियर प्लस, ये माइनस। तो अल्टीमेटली वो पूरा टर्म कैंसिल आउट होके ये एक्स वाई यहाँ पे एक है, ये एक्स इंटू वाई इंटू जेड ये टर्म, और और कहीं पे है क्या, ये वाला टर्म और दिस टर्म, मतलब ये एक्स वाई जेड ये तीन टर्म्स है, तो इट इज थ्री टाइम्स। सो इसके वजह से अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है, तो दैट्स वाई ये जो टर्म है इंस्टेड ऑफ दिस टर्म वी राइट दिस। सो यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो वी गेट दिस वन। तो मतलब ये हो गया आंसर, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नाउ जो प्रूफ हमें लेना है उसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन का लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन वन का लेफ्ट हैंड साइड है ये टर्म होल स्क्वायर इंटू यू, इस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, तो इस बेसिस पे हमने ये टर्म को ट्वाइस इंटू यू कर दिया। नाउ हियर ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ये यू के ऊपर अगर ऑपरेट करते हैं तो यू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई डेल यू बाय डेल जेड, दिस वन। और ये जो तीनों का एडिशन है इज इक्वल्स टू ए थ्री बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा। नाउ हियर ये अगेन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो ये जो ऑपरेटर है इस टर्म के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो इस टर्म से अगर चेक करते हैं तो इट विल बी डेल बाय डेल एक्स ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस ऑफ डेल बाय डेल जेड ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा। नाउ सी हियर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म वन अपॉन में अगर टर्म है तो वी कैन राइट डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर, सो ये विल बी माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज वन, then derivative of next term will be minus 3 upon x plus y plus z bracket square, and derivative of third term will be minus 3 upon x plus y plus z ब्रैकेट स्क्वायर। तीनों टर्म सेम है, तीनों का बेस सेम है, सो न्यूमरेटर के टर्म का एडिशन, तो माइनस थ्री थ्री टाइम्स ऐड करोगे तो इट विल बी माइनस नाइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एंड इट इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर डेल बाय डेल यू del by del x plus del by del y plus del by del z whole square into u is equals to minus 9 upon x plus y plus z whole square। सेकेंड पार्ट के लिए क्या चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव, करेक्ट है। अब सेकेंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो नाउ सी हियर सेकेंड पार्ट के लिए क्या करोगे, ये डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू आपके पास में, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू कितना निकाले थे हमने, थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड, ये हमारे पास में ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, वी हाउ टू डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियली अगर x से डिफरेंशिएट करते हैं तो इट विल बी del square u by del x square is equals to, here numerator as well as denominator contain x, so apply division rule, so here division term x cube plus y cube plus z cube minus 3 times x y z as it is, derivative of numerator term that is 6x, second term का derivative 0 minus numerator term 3x square माइनस थ्री वाई जेड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर टर्म, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये टर्म जीरो, ये भी जीरो होगा, और लास्ट टर्म इट इज माइनस थ्री वाई जेड होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस टर्म को आपको सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। नाउ सी हियर 6x से अगर मल्टीप्लाई करते तो इट विल बी 6x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x y रेज़ टू पावर 3 प्लस 6x z रेज़ टू पावर 3 होना चाहिए था, न्यूमरेटर z रेज़ टू पावर 3 माइनस यह 6 इंटू 3 इट विल बी 18x स्क्वायर y z। नाउ हियर ये जो आउटसाइड का माइनस साइन है इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म माइनस होगी, सेकेंड टर्म प्लस, तो ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई अगर करते हैं
-3x² से मल्टीप्लाई, तो इट इज -9x⁴ ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म। देन नेक्स्ट टर्म विल बी -3x² से इसको मल्टीप्लाई, तो इट विल बी +9x²yz। नाउ ये टर्म यहाँ पे माइनस की वजह से प्लस हो जाएगी, +3 टाइम्स xy से इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा +9x²yz। देन लास्ट टर्म इज -9y²z² डिवाइडेड बाय जो टर्म है उसको मैं लिखूंगी एज इट इज, और इसका ब्रैकेट का तो x⁴ का फोर्थ टर्म यहाँ पे इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इट इज -3x⁴। देन x² का टर्म कौन से टर्म में चेक कीजिए, x² का टर्म एक यहाँ पे, देन दिस वन टर्म पूरा 0 होगा क्योंकि ये 9 9 18 और ये इसके साथ में कैंसिल आउट, सेकेंड टर्म इज 0। अब जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसमें x का टर्म है, तो x का टर्म ये हो जाएगा +6xy³ +6xz³ एंड विदाउट x वाला जो टर्म है सिर्फ वो लास्ट में, दैट इज -9y²z² डिवाइडेड बाय डिवीजन का टर्म पूरा ऐसे। सपोज -3 को अगर कॉमन निकालते तो फर्स्ट टर्म विल बी x⁴, then next term will be -2xy³, then here -3xz³ +3y²z² divided by term as it is। अब देखो ये जो टर्म है और जो हमने क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन में x और y को अगर इंटरचेंज करते हैं, ये जो हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ पे x और y को इंटरचेंज करो या फिर x एंड z स्टिल अगर सेम रहता है तो हम यहाँ पे भी उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इट इज ∇2u/∇y² अगर फाइंड आउट करते हैं तो इट इज -3y⁴ माइनस x और y को इंटरचेंज करें तो ट्वाइस y x⁴ माइनस ट्वाइस y z³ +3 टाइम्स x²z² डिवाइडेड बाय टर्म जो है वो टर्म ऐसी है कि जिसमें x और y को इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख रहे हो यहाँ पे भैया। सो डिवीजन का टर्म यहाँ पे भी एज इट इज। देन थर्ड टर्म इज ∇2u/∇z²। नाउ x और z को इंटरचेंज करो इन अवर फर्स्ट टर्म, यहाँ पे x और z को इंटरचेंज करना है तो इट विल बी -3। अब तीनों का अगर डिवीजन का टर्म सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन करना है और डिवीजन के टर्म को एज इट इज ∇2u/∇x² +∇2u/∇y² ∇2u/∇z²। तीनों का बेस सेम है और ये -3 कॉमन है तो -3 डिवाइडेड बाय x² x³ y³ z³ -3 टाइम्स xyz ब्रैकेट स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज। तीनों के अगर न्यूमरेटर का एडिशन करते हो तो फर्स्ट टर्म इज x⁴ माइनस ट्वाइस xy³ -2xz³ +3y² z², then plus of next term, so next term is y⁴ it is nothing but x² y² z² minus yz minus zx ब्रैकेट्स। इस टर्म का ब्रैकेट का स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो फोर्थ पावर, सेकेंड का थर्ड का, फिर इन तीनों का भी क्या होगा स्क्वायर। स्क्वेयरिंग में क्या होता है सबका स्क्वायर, ये सबके स्क्वायर यहाँ पे एग्जिस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, इन दोनों के पेयर पेयर वाइज मतलब x² y, फिर दोनों इन दोनों के पेयर जितने भी पेयर है वो सब के सब आ जाएंगे कॉम्बिनेशन में, तो वो सब मतलब ये जो है फर्स्ट एंड दिस टर्म, देन ये वाले टर्म का प्रोडक्ट, तो जितने कॉम्बिनेशन पेयर्स में आ सकते हैं उन सबके पेयर्स भी आपको मिलेंगे और उसमें क्या हो जाएगा एक x² y² का टर्म, x² y² यहाँ पे भी आया था यहाँ पे भी आया था, उसके वजह से ये 3 टाइम्स में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर इज नथिंग बट दिस, और डिवीजन का टर्म अगेन एज इट इज। टर्म है डिवीजन का, इट इज नथिंग बट x + y + z इंटू ये न्यूमरेटर का टर्म ही आता है विदाउट ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाले टर्म
इस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। ये अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो इस ब्रैकेट का भी क्या है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर के वजह से ये फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर होगा, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और जिसके वजह से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होके ये रहेगा -3/x+y+z ब्रैकेट स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड का टर्म del square u by del x square is our final answer.